लाइव अपने चैनल में ये वीडियोस डाल रहा हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मेरे साथ पहली बार ये घटना हुई है एक्चुअल में। When I was coming from Delhi to South India, it was very shocked for me. Someone tapped my phone, which is approximate more than 35,000. It's a huge amount, guys. But actually, these type of things were happening if we can purchase a new phone if we are alive, if we are क्योंकि बाहर के जितने भी ब्लॉग्स मैंने बनाए थे, कुछ एडिट कर लिए थे, कुछ एडिट करने को थे, वो सब डिलीट हो गए हैं। डिलीट हो गया मीन्स मेरा फोन किसी ने चोरी किया और वो सारा जो डाटा है वो खत्म हो चुका है इस वक्त। तो मैं अभी जो ब्लॉग बना रहा हूँ अपने रूम के अंदर से बना रहा हूँ, अपने अपार्टमेंट से बना रहा हूँ, साउथ इंडिया से। मैं बताना चाहता हूँ कि ये ब्लॉग लेट आने का जो कारण था वो एक दुख भरा कारण था। एक खुशी के साथ साथ एक दुखी की जब चीज आती है ना, तो मतलब वो एकदम, मतलब ना डिफिकल्ट लेवल ना आपका इजी लेवल, मॉडरेट लेवल। अब मैं क्या हुआ कि मैं अपने देहरादून से, मुझे घर पे पता चल गया था कि मेरा ट्रांसफर हो चुका है। तो मैं बड़ा खुश था, मतलब दैट टाइम इट वाज वेरी गुड, इट वाज हैप्पी मोमेंट फॉर मी एंड यू आल्सो इफ यू आर इंस्टेड ऑफ मी। और मैंने जैसे कि शेयर भी किया अपने पेरेंट्स से, और मैं वापस साउथ इंडिया वापस आ रहा था। तो वापस आते समय दिल्ली मेट्रो, जो कि मुझे जिंदगी भर शायद याद रहेगा कि दिल्ली मेट्रो में जो मेरे साथ घटना हुई वो शायद पहली बार, अभी तक इस एज तक मेरे साथ पहली बार ऐसी घटना हुई। ये घटना मेरे साथ नहीं, किसी के साथ भी हो सकती है। एक्चुअली में ये घटनाएं भी ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ पहले हो चुकी है, लेकिन तब तक इंसान को विश्वास कहाँ होता है जब तक वो जो घटना है उनके साथ खुद के साथ ना घटी। सब कहते हैं कि तेरा फोन खो गया, you are not attentive that time, you are just looking here and there, you are not focused on your accessories, your things. Actually ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, मुझे अपनी चीज़ों का ख्याल रहता था। Each and every time whenever I go outside with my bags from my home, then I'm just checking all these things, where I put this thing, shall I put this thing or not. Sometimes it forget, no problem. बट जैसे ही मैं दिल्ली में पहुंचा, खुश मिजाज और खुशी का समय था, और फोन भी मेरे हाथ में होल्ड किया था। I just reached at Kashmiri Gate number 1 because the metro which I have to take from Kashmiri Gate to New Delhi, because the AP Express, I booked my ticket in AP Express, so it was just approximately 7 p.m. I have to take this train which comes from Delhi to South India, means Vijayawada. So actually, I was standing outside from the metro station. As I earlier, I faced that type of rush, that type of many people didn't noticed before. But that day, many people they are just going. I don't know. It was mid the time of office closed, and I think Saturday also. So I was going inside the metro. Just outside, I have phone. Okay, I have two bags. One bag I just put on my shoulders. Another one is in my left hand. Right hand, I was holding my phone. When I was entering from outside to inside, I just put my phone inside my pocket. Okay. When I reached inside the metro, once again, when I checked whether phone is available, because many times whenever I am traveling in any places, so I used to play games, I used to watch movies, etc. So most of the time I took I take phone in my hands. Just I check my phones. Where is my phone? Phone is available or not? The phone. Someone tapped my phone from my pockets. I was very shocked that time. How it come? What I can do? After that, I was just searching here and there. This is not a pencil. This is not small things which I can. It is a big thing. Means phone is a large size, such as this one and bigger than this one. But someone tapped my phone and just switched off instantly. What I can do that time? The train was going on its way. It was reached New Delhi after a few haltations. Then some of the unknown person are just standing surroundings me. They are asking about whether you are YouTuber. Yes, I simply tell that because we are Pahadi and we have simplicity and we don't
want to show our fake we are real, we show always reality. जैसे ही उन्होंने पूछने लगे कि आपके पास आपका चैनल है, तो एग्जैक्टली आई हैव कैमराज, आई हैव फोन, आई हैव माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे ही उन्होंने पूछा कि आपका चैनल है, तो मैंने भी कहा सिंपल सा, यार ये चैनल है मेरे पास, ये जो शर्ट पहना है मैंने वो अपने चैनल का है। तो उन्होंने सब्सक्राइब भी किया, वो अननोन थे मेरे लिए, तो वो हेल्प करना चाह रहे थे। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता व्हाट द इंटेंशन दे हैड। तो वो उन्होंने हेल्प किया मेरा ट्रेस आउट करने का, कि ट्रेस आउट मीन्स कि आप अपना फ़ोन नंबर दो, मैं हम कॉल करते हैं। लेकिन एक्चुअली वो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। किसने किया, उन्होंने ही किया या किसी और ने किया, मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, हम इधर उधर गए, फिर पुलिस से किसी से पूछने लगे, वहाँ के जो लोकल लोग हैं या पुलिस भी घूम रही थी वहाँ पर, तो पूछा कि यहाँ पर मैं कंप्लेंट कैसे फाइल करूँ, कहाँ फाइल करूँ। तो नोबडी यार, सिंपली आपको जब ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपकी चीज़ें खो जाती है, तो आपको बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट टू request anyone to trace out your phone. Even they are not able to tell us right informations where we have to go for filing means FIR. तो बात ऐसी थी कि मैं इधर उधर बस ऐसे ही पूछता रहा इधर उधर, और समय बहुत कम था, 45 से 1 घंटा था मेरे पास। तो मैं एकदम परेशान सा हो गया, खड़ा भी रहा, क्या करता, सब चीज़ें उसमें थी, एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई केप्ट सेव्ड इन माय फोन। लेकिन क्या करना था, अब करना भी क्या था, क्योंकि जब चीज़ें हो गई थी, तो ऊपर वाला भी कैसे सद्बुद्धि दे रहा हूँ ऐसे लोगों को, कैसे डीड्स करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, तो उसके बाद मैं गया पुलिस के पास। आई दैट टाइम आई थॉट यार आई हैव टू जस्ट सिंपली आई वेंट इन अ रॉन्ग बूथ, police booth. So I was requesting, please sir, I forgot my phone, means someone kept my phone from my pocket. Just please help me, if whatever the means you have, please let me know whether you can trace my phone or not, because everything is in my phone. I don't have much money, means I have only 100 rupees, which is not much much for spending my daily's work. Okay, so he simply told that what you don't have careful about your phones, your things. Actually that time I was puzzled, because nobody was sympathized me, so nobody was there uh, for guiding me, for motivating me, please just chill, it will trace out as soon as possible. The police simply told that you just go and file a FIR in nearest thana or whatever. Even they didn't tell that we have to pay little bit amount, we can help you, don't worry, we can call to that particular yeah, or concern booth, any police inspector, any police sub inspector. They simply told, they didn't behave they behave recklessly. What the actions, there are so many people who lost their phone each and every day, who lost their phone, and there are so many persons each and every day, more than 10 iPhones was theft by someone else. Actually what I can tell them. तो मैं धीरे धीरे आ गया दूसरे बूथ को ढूंढते ढूंढते, जो कश्मीरी गेट के आसपास था। मैं वहां पर अप्रोच किया, वन मैडम वाज देयर, शी वाज वर्किंग दिल्ली पुलिस, and another person was in working as a CISF sub inspector. I approached them, please sir, open CCTV camera, please trace out whether is there any instrument which are helpful for tracing my phone. They simply told that, they simply tell the same thing, but madam was in helping nature. She helped me for because I don't have means money for come outside from metro, because we have to pay some amount for coming outside from metro. So she has one coupon and she helped me. बट जो मैंने वहाँ का रिएक्शन देखा पुलिस लोगों का, और CISF का जो एक जवान था, वो शायद बिहार से था, उनका कोई नेचर ही नहीं था वो हेल्प करने का। सिंपली कह रहे कि 10 से ज़्यादा आईफोन डेली यहाँ पर खो जाते हैं, तुम लोग क्या करते हो भाई, तुम्हारे पास ऐसा सॉल्यूशन क्या है? तो दैट टाइम आई थॉट, because even I cannot remember my brother's number, my mother's number, anyone's, but besides only one number. I remember my sister husband, my Jija's number.
he has one number, and I just remember and request to Delhi police girl, means madam, please madam, I want to call to this number, he is my जीजा's number. I just called to my जीजा's, and जीजा ने कॉल उठाया. कॉल उठा के मैंने कुछ भी चीजें नहीं बोली, मैं सिर्फ इतना बताया मेरा फोन चोरी हो गया है, ठीक है, आप मुझे विशाल का नंबर दीजिए. तो उन्होंने विशाल का नंबर तुरंत दे दिया. और फिर दिल्ली पुलिस में सब जो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर है संजय शर्मा जी, भाई साहब है, उनको मैंने कॉल किया कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई है. एक्चुअली मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी सेम चीज़ें कहता कि तुम लोग दिल्ली में आके अटेंटिव नहीं रहते या फिर कुछ भी चीज़ें. ठीक है, उनका कहना भी ठीक था. एक्चुअली जब घटनाएं हो जाती है तो बाद में इस चीज़ का पता नहीं चलता. मैं केयरफुल हमेशा रहा, क्योंकि मैं पहली बार अपनी सिटी से बाहर नहीं आया था. इससे पहले भी मैंने बहुत जगह ट्रैवल किया था, लेकिन ये घटना हो गई तो हो गई. फिर मैंने कॉल किया तो भैया को भी डिस्टर्ब करके, मतलब भैया हेल्पिंग नेचर बहुत है उनके अंदर, तो आए, मुझे मनी भी दी और सपोर्टिव है. तो कहा उन्होंने मुझे दिल्ली में जो न्यू दिल्ली तक छोड़ना था, कहाँ से, आपका ये जो सीपी है वहाँ से. तो फिर वहाँ से भी मैं निकल गया. कहाँ के लिए? न्यू दिल्ली के लिए. न्यू दिल्ली के निकलने के बाद फिर मेरी ट्रेन थी. कुछ समय के बाद 10 से 15 मिनट के बाद फिर वहाँ पर भी मैंने वहाँ के जो अंदर बैठे लोग थे उनसे हेल्प ली कि मुझे, मेरा फ़ोन खो गया, मेरा सब कुछ मतलब नष्ट हो चुका है. मैंने रिक्वेस्ट किया. तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हेल्पिंग नेचर के, तो उनका 26 घंटे के सफ़र में उनका, उन दोनों लोगों का फ़ोन मेरे पास 20 घंटे तक था, जो मैं यूटिलाइज़ किया, FIR दर्ज किया, ट्रेस आउट करने की कोशिश की, लेकिन स्विच ऑफ होने के बाद वो ट्रेस आउट नहीं हो पाया. ठीक है, और उनका भी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ. एक नागपुर में उतरे थे भैया, और एक AAO में है विजयवाड़ा में, उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ. और संजय भाई का तो खैर दिल से थैंक यू है, क्योंकि वो तो अपने परिवार के हैं. ठीक है, उनका तो हेल्पिंग नेचर ऑलरेडी है और बनता भी अपने फैमिली वालों के लिए. लेकिन उसके बाद मैं पहुंच गया अपने यहाँ पे स्टेशन में. मतलब फिर हो गया जैसे भी हो गया. इतनी ट्रैवलिंग के बाद, इतनी भयंकर घटना के बाद मैं यहाँ पर. मैं लास्ट में एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लंबा खिंच जाएगा, बस एक चीज कहना चाहता हूँ, जब भी आप घर से बाहर निकलो, किसी अननोन से इतना टच ना रहना. क्योंकि अननोन को भी मैं नहीं कह सकता कि सब लोग बिलीव वाले ना हो. कुछ अननोन बिलीव वाले भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ एक्चुअल में बुरे लोग भी होते हैं. तो आपको जब भी अपने घर से बाहर निकलना होगा तो ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरीके से अपने लगेजेस का, अपने फ़ोन का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है. क्योंकि ये जो क्राइम है, जब पुलिस ही एक्सेप्ट कर रही है कि डेली 10 से 15 आईफोन यहाँ पर चोरी हो रहे हैं, तो हमें तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उनके पास तो मीन्स है उसको ट्रेस आउट करने के, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है ना. लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें ही केयरफुल रहना है. तो आप जब कभी भी बाहर आओ दिल्ली जैसे शहरों में, तो इग्नोर मत कीजिए इस चीज़ को, क्योंकि अच्छे से अच्छे को धोखा लग सकता है. तो ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा. और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि आप तुरंत ही अपनी जितनी भी प्राइवेसी है, अपने फ़ोन, दूसरे फ़ोन पे अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन करके, पहले तो अपने जो नंबर है आपको, उसको, उस नंबर मतलब कस्टमर केयर को कॉल करके उस नंबर को ब्लॉक करवा दीजिए. अगर नंबर ब्लॉक हो गया तो अपना जितना भी ट्रांजेक्शन आप गूगल पे से कर रहे हो और सब चीज़ों से कर रहे हो, वो सब बंद हो जाएगा. उसके बाद FIR दर्ज कर सकते हो दिल्ली पुलिस की साइट पे, लेकिन आई थिंक वो व्यर्थ है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है. ऐसे करनी चाहिए, ठीक है, एक लीगली जो तरीका वो ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, CEIR पोर्टल में, CEIR पोर्टल में, संचार साथी पोर्टल में आप वहां पर भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं. वो भी कंप्लेन दर्ज कर दी है. उसमें अकॉर्डिंगली टू जो डाटा दिया है, 16 लाख से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं. उनमें से 3.5 लाख, अप्रोक्सीमेट 3.5 लाख तक जो फ़ोन है और जो केसेस है वो सॉल्व हुए हैं, ट्रेस आउट हुए हैं. अब मुझे नहीं पता कि वो डाटा सही है नहीं है, फिर भी जो डाटा दिया है हम मानेंगे कि सही है. तो आपसे बस एक ही उम्मीद है, घर से बाहर निकलिएगा. ठीक है, कोविड के समय मास्क लगा के पहन निकलते थे ना, तो ऐसे एज यूजुअल ही निकलते हो तो एकदम स्टाइल में रहने का नहीं, स्टाइल में रहने का तो फ़ोन चोरी होने का, और भी चीज़ें चोरी हो सकती है. ध्यान रखिएगा. शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद.